information with you all that we are celebrating the journey of 25 years of excellence of our schools. And I'm sure each one of your hearts are filled with pride and joy for being part of such an excellent institute, giving us memorable moments to cherish. Now let me introduce you all to today's worthy judge, Mr. Sandeep Singh. He is MA Punjabi and BA from Guru Nanak Dev University. He has also cleared UGC Native Punjabi. He has served as assistant professor in MLU DAV College, Fagwara. Currently, he is working as Punjabi teacher in Jain Model Senior Secondary School. He is fond of singing, composing and playing tabla. He is also passionate about writing poetry. We heartily welcome you, sir, and hope you have a wonderful time with us today. Now let me make you familiar with माननीय प्रिंसिपल साहिबान जी और मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं रणदीप सिंह कक्षा 7 से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक सिपाही का आखिरी खत जो उसने अपनी माँ को शहीद होने से पहले लिखा था। सिपाही ने उस खत में अपनी माँ को उसकी शहीदी पर ना रोने की विनती की शुरू कर दी। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिर उठी हवाएं उदासी छा गई, सिर उठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में रखा घर जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, मुझको याद आ रहा है तेरी उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਦਨ ਸਹਿਗਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਕਿੱਡਾ ਕੂ ਕਲੇਜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਚਿਣਵਾਏ, ਕਿੱਡਾ ਕੂ ਕਲੇਜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਚਿਣਵਾਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਹੌਸਲਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਨ ਝੱਲਿਆ ਕਲੇਜੇ ਦੁੱਖ ਭਾਰਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ, ਨੀਹਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ। जज साहिबान, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, दिन रात दुनिया भजदी है, पर जिंदगी दे लिए हम समय नहीं। माँ दी लोरी याद है, माँ दी लोरी याद है, पर माँ कहन दे लिए समय नहीं। सब रिश्ते खत्म न कर लेने, सब रिश्ते खत्म न कर लेने, अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा। माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही सच्चे समर्पण का प्रतीक है। समर्पण का भाव हमें हर एक चुनौती का सामना करने का साहस देता है और अपने देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए हमें प्रेरित करता है। माँ भारती की प्रगति और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना ही हमारे देशभक्ति का सच्चा प्रमाण है। आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं चेष्टा शर्मा आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समर्पण। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और। कहते जे हत्थां ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
मैं नवदीप कौर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਪੈਂਡਾ ਰਹੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਪੈਂਡਾ ਰਹੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਪਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜਗਦੇ, ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜਗਦੇ, ਮਾਪੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਮਾਪੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ। प्रिंसिपल साहिबा, वाइस प्रिंसिपल साहिबा, जज साहिबा, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ, मैं पंजाबी ओ पंजाबी। दो हिस्सियां विच खलकत वंडी, मैं पंजाबी ओ पंजाबी। एक हिस्से नूं हिंद कहावा। अध्यापकगण एवं मेरे विद्यार्थी साथियों, मैं जैस्मिन झुंबर कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके सामने एक स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है कृष्ण की दुविधा। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियां अब सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माता पिता का चेहरा मैंने देखा नहीं, हाँ रोती रही माँ देव की, जुदाई मिली मुझे भेंट में, मामा कंस से मिला उपहार गए, मेरे माता पिता लाचार थे, 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों में, वैसे तो था भगवान मैं। प्रिंसिपल साहिबा जी, वाइस प्रिंसिपल साहिबा जी, जज साहिबन, अध्यापक साहिबन ਅਤੇ ਮੇਰੇ प्यारे दोस्त, ਅੱਜ मैं अपनी 7वीं जमात ਤੋਂ पॉइंट बोलन लगी हाँ। उसका विषय है मैं पंजाबी। मैं पंजाबी पंजाब की रहने वाली, सत्कार मैं सबदा करा, माँ बोली तो बस कुछ भी नहीं मैनू, माँ बोली तो बस कुछ भी नहीं मैनू, माँ बोली पंजाबी दा मैं सदा हंगारा पर। जद भी कोई बोले लगदा जो करना जो कोई मिश्री खोले, खैर मंगा मैं अपनी माँ बोली दी, खैर मंगा मैं अपनी माँ बोली दी, बदे फुले मेरी माँ बोली, सदा मैं यही दुआवां करा, मैं पंजाबी पंजाब दा रहने वाली। जिथे औरत जम्मी हर उस थां नूं सलाम, जेड़े शब्दां च इज्जत औरत लई हर उस बात नूं सलाम। सत्कारयोग प्रिंसिपल साहिबा, वाइस प्रिंसिपल साहिबा, जज साहिब ते मेरे प्यारे साथियों, कुछ अजिहे ही विचारां नूं लेके मैं वंशिका तुहाडे सब दे सामने अपनी कविता पेश करन जा रही हां जिस दा सिरलेख है अज दी औरत। अजकल सारे संसार विच औरतां ने हर एक पक्ष तो ताकत जमाई सोहनी, जिथे जिथे भी इसने काम है कीता हर थां पाई है मान वडियाई सोहनी। हर खेतर विच मल्ला मार के ते काम करन दी शक्ति विखाई सोहनी। प्रधान मंत्री ते राष्ट्रपति बन प्रधानमंत्री अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ प्यारे विद्यार्थी साथियों, मैं फलिका आज ਤੁਹਾਡੇ सामने वातावरण ਨਾਲ संबंधित एक कविता पेश ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। हवा पानी ते भोजन जे शुद्ध होण ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਡਾ। हवा पानी ते भोजन जे शुद्ध होण ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਸਾਡਾ।